तो ये IVF, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। तो उसमें नेक्स्ट है सरोगसी। सरोगसी मदर तो आपको पता है ना, शाहरुख खान ने भी सरोगसी से उसके बच्चा हुआ है, अब्राहम, कुछ ऐसे ही नाम है उसका, अब्राहम शायद, हाँ। फिर आमिर खान का भी बच्चा ऐसे ही हुआ है। तो वुमन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है ये तो बात अलग है, लेकिन सरोगसी में दूसरे की बच्चेदानी जो भी है उसमें अब दूसरा स्पर्म्स और एक दूसरे के फ्यूजन करके डालते हैं और वो माँ बनती है। मीन्स व्हाट, बायोलॉजिकल मदर इज़ डिफरेंट। बायोलॉजिकल मदर है वो जो स्पर्म्स एग्स डालते हैं, वो बायोलॉजिकल मदर हो गई। ओके, सम वुमेन्स हैव प्रॉब्लम्स implantation of embryo in uterus. Such women can take the help of modern remedial technique is called surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in the uterus. That oocyte is fertilized in the test tube with the help of sperm collected from her husband. The embryo is formed from the such fertilization is the implanted in the uterus. Some other woman having normal uterus, such a woman in whose uterus is embryo is implanted is called surrogated mother. जिसमें इम्प्लांट किया है एम्ब्रियो, वो मदर क्या हो गई, सरोगेट मदर। और बायोलॉजिकल मदर है जिसने अपना एग दिया है, राइट, बायोलॉजिकल पैरेंट, एग एंड स्पर्म जिसने दिया। स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्पर्म प्रोडक्शन as mentioned above in the case of many men so as to have the children in the case of such couples. Now concept of sperm bank been introduced. ये sperm bank की concept है जहाँ पे लोग मेंस स्पेशली अपने स्पर्म्स डोनेट करते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इट्स फुली इट्स टेक प्राइवेटली, ये किसी को भी बताई नहीं जाती है कि किसके स्पर्म्स आपको दिए गए हैं, स्पर्म डोनेट हो गए हैं, और उससे भी बच्चा हो सकता है। कलेक्टेड देयर थ्रू द फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप एंड स्टोर इन द स्पर्म बैंक. Okay, as per this wish of needful couple, oocytes of woman of a concerned couple is fertilized by the IVF. तो ये IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइज किए जाते हैं, स्पर्म डोनेशन से स्पर्म लेके और वो फीमेल का oocyte लेके वो फर्टिलाइज किए जाते हैं. यूजिंग द सीमेन फ्रॉम द स्पर्म बैंक, resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman. Name of the semen donor is strictly kept secret as per the law. इसके लिए भी लॉ है, किसने डोनेट किया है स्पर्म्स ये किसी को भी पता नहीं चलता है. तो ट्विंस, नाउ two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously. Such offsprings are called twins. And many couples have twins. There are two main types of twins as a monozygotic twins and dizygotic twins. तो यहाँ पे जो एक ही साथ दो एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो ट्विंस पैदा होते हैं. तो ट्विंस भी दो प्रकार के हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रियो. मोनो मीन सिंगल, तो जो सिंगल एम्ब्रियो से दो हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं मोनोजाइगोटिक. During the early period of the embryonic development, within the 8 days of the zygote formation, cells of that embryo divided into two groups. Those two groups develop as two separate embryo and thus the monozygotic twins are formed. Such twins are genetically exactly similar to each other. ये एक जैसे ही होते हैं. Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and the gender also same. Both will the either boys or girls because these are the monozygotic. In the case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups, 8 after the zygote formation, there is a high possibility of formation of co-joined twins. Mean Siamese twins means एक दूसरे को Siamese बोलते हैं ना, एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं, तो ये हो सकता है. Such twins are born with the parts of body joined to each other. सम ऑर्गन्स आर कॉमन इन सच ट्विंस. ये बहुत ही डेंजरस होता है. हमने तो बहुत सारे टीवी पे देखे भी है, अगर आप यूट्यूब पे देखो तो आपको समझ में आएगा. Occasionally two oocytes are released from the ovary of woman and both oocytes are fertilized by two separate sperm and thus two zygotes are formed. Two embryos are formed from those two zygotes. Both of these embryos are separately implanted in the uterus and thus zygotic twins are delivered. After the
complete development. Such twins are genetically different and may be same in a different by the gender. तो ये गर्ल्स बॉयज जब होते हैं ना एक साथ, तो ये है डायजाइगोटिक. ओके, नाउ वी सी हियर. You may have read that sometimes the women may deliver more than 2 offspring at a time. Collect more information internet about the reason of such increase. कई बार ऐसे होता है ना ट्विंस, तो हमने एक्चुअली ट्विंस तो सबको पता है, लेकिन एक साथ कभी कभी 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं. इंटरनेट में आप कलेक्शन कर लो इसके इन्फॉर्मेशन. तो ऐसा क्यों होता है, फाइंड आउट इट. देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. A person's state of being physical, mental and social strongness is called as health. Health क्या है सबको पता है. It's a mental, physical as well as social well-beingness. Oh, it's called health. In our country, there seems to be a lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social custom, tradition, illiteracy, shyness. Especially there seems to be a indifference toward the reproductive health of women. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमारा ट्रेडिशन, हमारा कस्टम, इसकी वजह से हम खुल के बोलते नहीं है. हाँ, या तो शर्माते हैं बात करते हुए एक दूसरे से. तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, हाउ टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सबको पता होना ज़रूरी है. तो हमारे कस्टम ट्रेडिशन हमको अलाउ नहीं करते ये बोलने के लिए. ये फिजिकल मेंटल स्ट्रांगनेस जैसे चाहिए सोशल, वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. तो ओकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द वुमन. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वुमन में, स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ओवरऑल द हेल्थ ऑफ द वुमन. नाउ डेज वुमेन्स आर वर्किंग एट अ पार विथ मेन. अब तो वुमेन का काम ज़्यादा बढ़ गया है, वो घर के भी काम करती है और बाहर के भी काम करती है. इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रही है, मैन को स्ट्रांग कर रही है, लेकिन फिजिकली उनका डिटोरेशन हो रहा है. ब्लीडिंग ड्यू टू दिस दे हैव टू स्टे outdoors for the whole day. Bleeding occurs during a menstrual cycle. Due to this, private organ genital needs to maintain clean time to time. Otherwise, the problems regarding reproductive health may arise. बाहर जाती है तो उनको ये दिक्कतें आती है क्लीनलीनेस में, तो वो दिक्कतें आती है तो आपको उसको ओवरकम करना चाहिए, बिकॉज इट्स टोटली अफेक्ट ऑन योर reproductive health. May be and some problems regarding reproductive health may arise to men. It is essential to maintain the cleanliness of their genital organs. Please read this and ask me if anything doubtful is there. Okay. Among the various sexual diseases, the syphilis and gonorrhea occurs on a large scale. जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी ना रखे तो आपको डिसीज़ भी हो सकते हैं. उसमें से ये साइफिलिस एंड गोनोरिया ऑकर्स ऑन लार्ज स्केल. बोथ ऑफ दिस डिसीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये दोनों डिसीज़ है ये बैक्टीरिया से होते हैं. ऑकरेंस ऑफ द पैचेस कैन एट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जेनिटल रैशेस, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, एलोपेसिया. The symptoms of syphilis: painful and burning sensation during the urination, oozing of pus through the penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes are the symptoms of gonorrhea. अगर आपको सूजन हो रही है, खाज खुजली हो रही है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए. Okay, now the population explosion. Here the excessive growth of the population विदिन अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. बहुत ही कम समय में ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ होना, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. यू मे हैव रियलाइज फ्रॉम द हो table given beside about the first population growth of the India, who have to face the various problems like unemployment, decreasing as per the capita income, and increasing loan, stress on natural resources, etc. There is only one solution for all such problems, that is population control. Family planning is essential for this. See, here the year is given, population is given. See the population in 1901
तब से पॉपुलेशन लेके आपका 2011 तक का पॉपुलेशन आप देख लो कितना हो गया है। हम तो अभी 130 करोड़ से ज़्यादा हो गए। मीन्स व्हाट, इट्स अ नेचुरली बर्डन ऑन एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। इट्स ए नेचुरली बर्डन ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज उतने ही उतने हैं, लोग तो आजकल खेती बाड़ी करना नहीं चाहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में खोज करने आते हैं गाँव छोड़ के शहर पे। तो हमारे नेचुरल रिसोर्स पे भी बर्डन आ रहा है। तो इसका सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हम कैसे कंट्रोल करेंगे? पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है? फैमिली प्लानिंग फॉर द कपल्स। अगर फैमिली प्लानिंग करेंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। तो आगे चल के तो इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि शायद हमको चाइना ने जैसे रूल बनाया था एक ही चाइल्ड, वैसे रूल बनाना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया में। क्योंकि हम इंडियंस क्या है, फुलिश लोग हैं। भगवान की देन समझ के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो जाते सबको। हाँ, कोई भी रिलीजन का हो, बस। तो ये जो हमारी सोच है वो ऑर्थोडॉक्स सोच है, उसको हमको बदलना चाहिए। अगर सब ने मिलके अगर डिसाइड कर लिया पॉपुलेशन को रोकना है, फैमिली प्लानिंग जैसे इस्तेमाल कर लिए टेक्निक्स, तो शायद हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो और ये सारे नेचुरल रिसोर्स जितने हैं उतने ही सबके लिए काम आए। और इससे हमारे कंट्री पे भी ट्रेस नहीं बढ़ेगा, फाइनेंशियल भी ट्रेस नहीं बढ़ेगा, किसी भी पैमाने पे ये ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल में लाए। खाने वाले बहुत है तो खाना उतना मिलना भी चाहिए ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो दिन ब दिन डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं, तो हम कंजर्व कैसे करें उनको? तो हमको ये फैमिली प्लानिंग इज़ द essential for this, for the control the population. If you have any doubt, you may ask me now. This chapter is over. In next lecture we will take our fourth one chapter, which name is environmental management. If you are what I mean to say, if you write down this exercise and send me on my mobile number. Okay, you have any doubt, if you have any doubt, you may ask me anytime. Okay, till then, goodbye.